آپ ہمیں سمندر میں کود پڑنے کا بھی حکم دیں گے، ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ ہمیں برق غماد تک پہنچنے کا، بہت لمبا فاصلہ ہے، وہاں تک بھی پہنچنے کا حکم دیں گے کہ ہم وہاں تک بھی پہنچیں گے، دین کی سربلندی کے خاطر، اعلی کلمت اللہ کے خاطر، ہم آپ کی اتباع کے خاطر ہم کچھ بھی تک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم کا انتظار ہے، آپ کے حکم کا ہمیں انتظار ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھر مجدار میں سمندر کے بالکل قریب آنے کے بعد کیا کہا تھا کہ موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کر لڑو، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ایسی بات نہیں کہیں گے، اے نبی ہم ایسی بات نہیں کہیں گے، ہم آپ جو کہہ رہے ہیں ہم وہی سنیں گے، آپ کے اتباع میں اپنی گردنوں تک کو کٹانے کے لیے ہم تیار رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں گفتگو کی، پھر صحابہ کرام کی فوج ترتیب دی گئی۔ اب صحابہ کرام میں انصار زیادہ تھے، مہاجرین کم تھے، مہاجرین میں تقریباً 165، انصار میں 165 تقریباً قبیلے خزرج کے تھے، 87 یا 90 کچھ تھے یہ قبیلے اوس کے تھے۔ یہ وہ قبیلے تھے جن کی ایک زمانے میں بنتی نہیں تھی، آپسی دشمن تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی بھائی بن کر دشمن کے خلاف ایک صف میں سب بستہ ہو کر دشمن کا قلعہ کما کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ بہرحال اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد اور حضرت علی اور حضرت مقداد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً مقداد تھے، یہ ایک سواری پر سوار ہیں، باری باری سفر کر رہے ہیں، بدر کا سفر باری باری سفر کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے علی بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دوسرے صحابی بیٹھتے ہیں۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی، صحابہ کرام کا دل مچل اٹھتا، کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو چلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، ہماری باری آپ بیٹھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے کہا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ پہلوان ہو؟ کیا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ مجھ سے زیادہ طاقتور تم نہیں ہو سکتے، میں بھی چل سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری میں برابر چلتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تین صحابہ کرام تھے، تین صحابہ کرام چلنے لگے ایک سواری پر، کسی کے پاس سواری ہے تو کوئی پیدل چل رہا ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے، کسی کے پاس کچھ ہے تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، بچے تک جو ہے جنگ بدر میں شریک ہیں۔ قافلہ، مسلمانوں کے قافلے کی جو ہے حالت ظاہر یہ تھی کہ بس تاریخ میں آتا ہے کہ ایک عدد مورخین نے لکھا ہے 313 سے 319 تک کی جو ہے صحابہ کرام کی گنتی بتائی گئی ہے تاریخ میں، 313 سے 319 تک بس صحابہ کرام اتنے ہی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے۔ بہرحال صحابہ کرام نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک مقام پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب زور کی بارش نازل کی، بارش نازل ہونے کی وجہ سے ان کا غم، ان کا غصہ سب ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی جگہ پر جو ہے پڑاؤ دیا صحابہ کرام کو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فلاں فلاں کافر اس جگہ مرے گا، فلاں فلاں کافر کو اس جگہ قتل کر دیا جائے گا، فلاں فلاں کو اس جگہ مارا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کافروں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کو اللہ نے اسی جگہ پر قتل کر دیا۔ میدان بدر کا دن شروع ہوا، اس سے پہلے کفار کے جاسوس آ کر جو ہے جاسوسی کے لیے کھڑے ہوئے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ انہوں نے ایک جاسوس کو پکڑ کر اس کی خبر گیری لی تو وہ جھوٹ بولنے لگا۔ جب وہ سچ بولتا تو صحابہ کرام اس کو مارتے، جب وہ جھوٹ بولتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ صحابہ کرام لا علم تھے، صحابہ کرام کو علم غیب تھوڑی تھا۔
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े, वही नाजिल हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा कि अरे वो सच बोलता है तो तुम उसको कुछ नहीं करते, झूठ बोलता है तो तुम उसको मार रहे, जब वो सच बोलता है तो तुम उसको मार रहे हो, झूठ बोलता है तो तुम उसको छोड़ रहे हो। असल मसला ये है कि यहाँ इतने इतने काफिर है। वो उतबा, शैबा, वलीद, इनके बारे में जो है खबर बता रहा था। असल सहाबा इकराम अबू सुफियान के बारे में मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि अबू सुफियान उनका सरदार था। अबू सुफियान, अबू जहल, इसी तरीके से शैबा, ये सब जो है ये बड़े बड़े सरदारों में से थे। बहरहाल उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इनको ये पूछने की जरूरत नहीं है, ये कुफ्फार का ठिकाना मैंने देख लिया है, इन्हें यहाँ कत्ल कर दिया जाएगा। बहरहाल जंग शुरू होने से कुछ देर पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग शुरू होने से कुछ देर पहले दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। दुआ के लिए हाथ उठाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिड़गिड़ाते हुए दुआ करते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा आती मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबती मिनल इस्लाम ला तुबत फिल अर्द। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हुए कहते हैं कि अल्लाह तूने मुझसे जो वादा किया है वो मुझे अता कर, यानी मुझे फतेह से हमकिनार कर। अल्लाह तूने मुझे जो देने का वादा किया वो मुझे अता कर, यानी मुझे फतेह कर दे। अल्लाह तू याद रखना, अगर आज ये छोटी सी जमात आज इस दुनिया से कट पिट कर रुखसत हो गई, खत्म हो गई, तो याद रखना क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर बेइख्तियार दुआ कर रहे हैं, आपका कुर्ता यानी आपकी जो चादर थी आपके कंधे से सरक गई, आपका कंधा खुल गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े आए, कहा आपके कंधे को, जो अपने कंधे को ढक कर पीछे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए, कहने लगे ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कीजिए, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की। कैसे मदद की? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु फी बद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह तबारक व तआला ने बद्र के मुकाम पर तुम्हारी मदद की, तुम बेहयार और मददगार थे, बदहाल थे, तुम्हें जिल्लत और रुसवाई ने छू लिया था, जलील और ख्वार हो रहे थे, अल्लाह ने तुम्हें सब्र दी। और फरिश्तों के जरिए, कैसे फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने मदद की? अल्लाह तबारक व तआला ने बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लिन, 3000 फरिश्तों के जरिए, 3 नहीं फिर 5000 फरिश्तों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद की। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं कि हमने, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, हमने अभी दुश्मन को मारने के लिए तलवार निकाला, जैसे ही तलवार का वार करना चाहते दुश्मन का सर तन से जुदा होकर गिर जाता। फरिश्तों की मार ऐसे उनके ऊपर कारी ज़रब बन के पड़ जाती कि ऐसे उनके चमड़े ऐसे फटकर निकल जाते, जैसा कि एक बेरी की दरख्त पर एक पतला सा कपड़ा फेंक कर खींच दिया जाए, जैसे फटकर निकलता है, उनकी चमड़ियां ऐसे उधेड़ दी जाती। इतनी जिल्लतनाक मौत अल्लाह तबारक व तआला ने, इतनी जिल्लतनाक मौत अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्फार को दी। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का मुखालिफ जो था अबू जहल जो था, इतराता हुआ गुरूर और घमंड की हालत में मैदान की जो है सफों में चक्कर काट रहा था। 2 बच्चे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, कहा क्या है चचा, वो अबू जहल कौन है जो मेरे नबी को गालियां देता है? वो अबू जहल को बताइए, उस अबू जहल को वो कैसा दिखता है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे, माज और मुआविज थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा कि बच्चों, उस अबू जहल का लेकर तुम क्या करोगे? बच्चों ने अपनी छोटी छोटी तलवार निकाली, कहा कि हम इस हथियार से, इस तलवार से हम उसका सर तन से जुदा करेंगे। क्यों बेटा, क्यों, क्या वजह क्या है? इसलिए कि वो मेरे नबी को गालियां देता है। तभी बातें चली रही थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि देखो वो सफ में जो आला घोड़े पर बैठकर आ रहा है सीना चौड़ा करके, वही अबू जहल है। बस इतना कहना था। बच्चे दौड़ते दौड़ते गए, एक बच्चे ने भागते भागते जाकर जो है एक वार जो है घोड़े के पैर पर इस कदर जोर से मारा कि
कि घोड़ा बिल्कुल नीचे गिर गया। जैसे ही घोड़ा नीचे गिर गया तो अबू जहल घोड़े से नीचे आया। जैसे ही अबू जहल नीचे गिरा, दूसरे बच्चे ने जो है उसके गर्दन पर वार कर दिया। जब उसको अधमरा करके छोड़ दिया गया तो उसके पूरे सरदार आए, यानी उतबा, शैबा, वलीद जितने भी थे सब के सब उसके करीब आए। कहा कि उसने पूछा कि ये दो बच्चे कौन थे। अबू जहल ने कहा ये 2 बच्चे कौन थे। कहा गया कि एक गुलाम के बच्चे हैं। कहा गया कि एक गुलाम के बच्चे हैं। कहने लगा हाय मेरी बर्बादी, हाय मुझ पर अफसोस कि मुझे 2 गुलाम के बच्चों ने मारा। ठीक है, कोई बात नहीं, जब मैं मर जाऊं तो मेरे सर को जो है मेरी गर्दन से अलग ना करना, बल्कि मेरे सीने से अलग करना। कह देना कि ये सरदार की मौत हुई है, सरदार मरा हुआ है। मरते वक्त भी जो है गुरूर और घमंड नहीं खत्म होता। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 14 मुसलमानों को शहादत दी। 14 मुसलमान इस जंग में शहीद हुए, 70 कुफार कत्ल हुए और 70 जो है कैद हुए। अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह से हमकिनार किया। और सहाबे कुफार का बयान है, कुफार कहते हैं कि जब वो मुसलमानों की फौज की तरफ देखते तो उन्हें ऐसे महसूस होता जैसा कि हमारे दुश्मनों का एक बहुत बड़ा लश्कर है, लश्कर ही नहीं बल्कि समंदर है, ऐसे महसूस उन्हें होता। फिर उसके बाद जब जंग छिड़ी, जंग छिड़ने के बाद इब्लीस भी जंग में शरीक था। शैतान लईन इब्लीस भी जो है इस जंग के अंदर शरीक था। वो सुराका बिन मालिक बिन जुयश मुदलजी की शक्ल में आया हुआ था। उसने जो है मुसलमानों को और कुफार को लड़ाना चाहा, लड़ाने लगा। लेकिन जब फरिश्तों को उसने देखा, फरिश्तों को देखा तो भागना शुरू कर दिया। एक अंसारी, एक कुफार ने जो है, एक मदीना के कुफार ने, काफिर ने उसको पकड़कर कहा कि अरे तू तो हमारे सरदारों में से, तू तो हमें लड़वा रहा है, तू क्यों भाग रहा है। कहने लगा कि नहीं, मैं ऐसी चीज देख रहा हूं जो तू नहीं देख सकते। यानी वो फरिश्तों को, शैतान फरिश्तों को देख नहीं सकता, फरिश्तों के सामने टिक नहीं सकता। फरिश्तों को देखकर जो है भागने लगा। जब भागने लगा तो उसने बड़ी मजबूती से पकड़ा तो उस कुरैशी को जो है इस कदर मारा कि उसके सीना फूल गया। मारकर जो है ऐसे भागने लगा। सब लोग उसके पीछे भागने लगे। कहने लगे कि सुराका रुक जा, सुराका रुक जा, तू तो हमारा सरदार है। कहने लगा मैं नहीं रुक सकता, मैं ऐसी चीज देख रहा हूं जो तुम नहीं देख सकते। भागते 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 समंदर की तरफ जाकर गायब हो गए। इब्लीस भी इस जंग के अंदर शरीक था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसे भी जलील कर दिया। फिर उसके बाद जंग खत्म हुई, होने के बाद माल गनीमत मुसलमानों के हाथ आ गया। फिर उसके बाद कैदियों का मामला था, कैदियों को क्या किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर, उमर रजी अल्लाह तआला आपस में मशवरा करने लगे। उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दो, खत्म, किस्सा खत्म कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, कत्ल नहीं करो, बल्कि इनसे फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। अब बाद में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की आयत नाजिल की कि तुमने जो फैसला लिया वो गलत लिया। हजरत उमर की जो है राय में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल की। उमर का मशवरा सही था, उनको कत्ल कर दिया जाता। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिया ये मुकर्रर किया कि अगर इतना फिदिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया। अब जो लोग फिदिया नहीं दे सकते उनका मामला ये था कि उनमें, उन कैदियों में से अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है तो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाई लिखाई, यही उनका फिदिया था। अब उन जंगी कैदियों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि, 2 बातें बताकर बात खत्म कर रहा हूं। उन जंगी कैदियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद अबुल आस भी था, जो इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बास को देखते, क्योंकि इंसाफ था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बेड़ियों में बांधने का हुक्म दिया। रात हुई, अब्बास को बेड़ियों में बांधने की वजह से तकलीफ होने लगी, कर्राहने लगे अब्बास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास की आवाज सुनी, तकलीफ होने लगी, रात में नींद नहीं आने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बुलाया, मशवरा किया, कैदियों की क्या बेड़ियों को ढीली कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया, मशवरा पूछा। सहाबा इकराम समझ गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को तकलीफ हो रही है। सहाबा इकराम ने अदा किया। इतना ही नहीं, हजरत ज़ैनब को मालूम हुआ, अबुल आस उनके शौहर, ज़ैनब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, उनके शौहर अबुल आस भी कैदी हैं। ज़ैनब को मालूम हुआ, माँ ने, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनके निकाह के मौके पर एक बेहतरीन हार उनको तोहफे में दिया था। अब उनको अपने शौहर को छुड़ाने के लिए, फिदिया देने के लिए कुछ नहीं है, हार देकर भेजा।
अपने गले का हार निकाल कर देकर भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो हार पहुंचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हार को देखने लगे, रोने लगे, देखने लगे, रोने लगे। कहा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा इस हार के अंदर क्या है? तो कहा कि ऐ मेरे साथियों, ये हार मेरी बच्ची का हार है, ये ज़ैनब का हार है। ज़ैनब को मेरी अहलिया खदीजा ने जो है मेरी बच्ची को जो है तोहफा दिया था। अब मेरी बच्ची जो है अपने शोहर को छुड़वाने के लिए हार फिदिये के तौर पर देकर भेज रही है। क्या करूं? मेरे इंसाफ का तकाजा है, अदल का तकाजा है, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं फिदिया ले रहा हूं। सहाबा इकराम ने बाद में मशवरा किया, मशवरा करके जो है छोड़ दिया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल था। ये जंग बदर थी, ये जंग बदर के वाकयात थे। मेरे भाइयों, हमारे असलाफ ने इतनी तकलीफें उठाई रमजानुल मुबारक में, रोजे की हालत में, चिलचिलाती हुई धूप में। अरब की गर्मी कैसी होती है, अरब की धूप कैसी होती है, उस धूप में हमारे असलाफ ने इस्लाम की बका के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, आला कलिमतुल्लाह के लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह किया। आज हमारा मामला यह है कि रमजानुल मुबारक के महीने में रोजा, सिर्फ रोजा रखो कहा जाए, रोजा नहीं रखते। नहीं भाई, दिन भर मेहनत मजदूरी करना पड़ता हमारे को, काम काज है हमारा, ये है वो है। क्या हम सहाबा इकराम से बढ़कर हैं? 55 डिग्री की धूप, ऐसी धूप में सहाबा इकराम जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। वैसी तो नौबत नहीं है आज मुसलमानों को। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ अल्लाह ने दिया है। अब वैसे भी काम बहुत से लोग, मैं समझता हूं 90% लोग जो है ऐसे रमजान मुबारक में काम नहीं करते, सिवाय तुज्जार के। अब जो लोग जिन्हें जरूरत ही है, उनमें से बाज अल्लाह के लाल ऐसे भी रोजा रखकर मेहनत मजदूरी करते हैं। बाज लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने हट्टा कट्टा बनाया है, नेमत जसामत जैसी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, ताकत कुव्वत दी है, इसके बावजूद भी अल्लाह के नाशुक्रे हैं, खाते पीते हुए जानवरों की तरह फिरते हैं। इन पर ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा उलाइका कलनाम बल हुम अज़ल। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दिलो दिमाग दिया है, समझ नहीं सकते, कान दिया है, सुन नहीं सकते, ये जानवर ही नहीं बल्कि जानवर से भी गए गुजरे। और क्या चाहिए? इसलिए मेरे भाइयों, शरीयत की पाबंदी करो, रब की हुक्म की पाबंदी करो, इताअत करो, इसी में हमारी कामयाबी और भलाई है। मनमानी जिंदगी गुजारेंगे, ये मनमानी जिंदगी हमें फना कर देगी, हमें दुनिया में जलील और रुसवा कर देगी। आखिरत की जिल्लत और रुसवाई तो इससे बढ़कर और भयानक है। इसलिए मैं इन्हीं बातों पर, मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि इलाहुल आलमीन हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तेरी इबादत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल को अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। जब तक हमें इस दुनिया में जिंदा रख, किताब और सुन्नत पर कायम रख। जब हमारी वफात हो तो जुबान पर कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।